This is the question of the last topic we did here. This is finding out the nth term. So the consider quadratic sequence. So you have to find out the sequence an. An you have to find out. So it would be in the maybe what type of form it would be. So an you have to find out. Now if you check it here, uh, what would be the differences are there? The first difference are, you just take out 15 minus 6 is 9, 28 minus 15 would be 13, 45 minus 18 28 would be 7 17, I think so now. And 66 minus 45 would be 1 and 21. Okay, now take the second difference. So second difference would be between them would be 4, and between them would be 4, and between them would be 4. This is constant. Okay, this is constant. If second difference is constant, so we can say this is a quadratic sequence, where even it is written quadratic sequence. So it would be in the form of a n raised to the power 2 plus bn plus c. Okay, it would be in this form. What is the n? Now the most easy value of the thing is, if you take the difference of them to find a. So a is nothing, it is the second difference which is constant, okay, divided by 2. So here second difference is 4 by 2, which can be 2. So a is 2 here. Now to find b, we have a relation, the first difference, this difference, okay, this is the first difference here we have, and that first difference can be written as, okay, this is the difference. If you will write it here, let's say in this you write this difference is a2 minus a1. So what is a2? A2 would be 4a plus 2b plus c, and this difference would be a plus b plus c. So if you take the difference of them, so you will get 3a plus b. So this difference 9, which is 9 here, it is 3a plus b. Okay, so I can directly write 3a plus b is equal to the first difference. Okay, the first term of the first difference, it is first term of first difference. Okay, so a you can substitute, it is 6 plus b is equal to 9, so you get b is equal to 3. And now you have the sum of them. What is a1? A1 is a plus b plus c. So you can find out this as 6 given. It is given as 6. So you have 2 plus 3 plus c is equal to 6. So c is equal to 1. So the sequence is 2n square plus 3n plus 1. You can check whether it is correct or not. You can substitute, let's say 3 you substitute, so it should be 28. If you substitute 3, so it would be 9 into 2 is 18 plus 6 plus 1. Okay, so what is coming? 9. 3 into 3, 9. It will come 9, not 6. It will come 9. So 18 plus 9, 27 plus 1, 28. So 28 is coming. So it is coming the same term. That means whatever we did it correctly. Okay. So if they will give you such type of question, okay, which of the following can be the quadratic sequence? Okay. So that's the way of finding out A, B and C. Clear? We did a question last time also, we did a question on this. Here we did some questions on it. We have done some questions. So that is how that we did some question on it. Okay.
Now moving to the next type of topic, which is a geometrical part of it. Okay, so one by one we will discuss out the things here. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. So what do we have? The conventional term and notation: point, line segments, and this. So what is a point? How you define a point? Um, One set of coordinates. See, there is no specific definition of a point. Some says it's a smallest circle we can draw. It is a dot, or मतलब it is a circle of zero radius, which is actually not possible, है ना? And a negligible radius. Somebody says circle of negligible radius. Okay, so uh, the the position, मतलब the point is the position na, the position of this, the position can be defined in various ways. Okay, including by coordinates on a grid or by intersection of two lines. अब देखो ये है दो लाइन, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, so this is, we call it a point. Yeah. Okay, they are intersecting at a point. Now there is another term come line. Still we have not defined line. Yeah. What is a line? Now there is a question arises, what is a line? This is a infinitely, है ना, NITLY TELY, infinitely long. Okay, and you can say it a one dimensional figure. See, somebody says that it is a figure of, it is a one dimensional figure only having length. Point does not have any dimension. Point does not have length, it does not have width, it does not have height, it does not have anything. Point is just a dot. Line is something which has infinitely length. Length can be infinitely, okay, but it does not have the width. Okay, there is no width. Now the part of this is line segment. Line segment is nothing, it is part of it. It is measurable part of line, of a line. एक लाइन का हिस्सा है, समझे ना, वो होता है. देन वी हैव वर्टिसेस. देखो वर्टिसेस एक ऐसी पॉइंट होता है, समझे ना, एक फ्लैट सरफेस है, उस पर वर्टिसेस है जहाँ पर प्लेन्स आके मिलती हैं. मतलब प्लेन क्या, उसकी लाइंस कह लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये तीन लाइन यहाँ पे आके मिली हैं, तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. अब देखो, वी विल ड्रॉ ए फिगर इन दिस, वी विल ड्रॉ ए फिगर लाइक दिस. ओके, वी कैन हैव ए फिगर इन दिस वे. Okay, this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex, this is a vertex. That point is a vertex where two or more lines meet. वो एक पॉइंट है. ओके, या लाइन भी नहीं कहेंगे, एजेस कहेंगे. एजेस मीट, दीज आर नोन एज एजेस. this surface is known as plane. We have na edges, vertices, plane, all this. Okay, in a
3D figure, in a 3D figure, there is a, for example, this figure, 8 vertices. Okay, now it has 12 edges. Okay, it has 6 faces. Got it? Now, what do we have? Here, the vertices plus faces would be equal to edges plus 2. This is the statement for all the 3D figure. Okay, the vertices plus faces would be equal to the 2 plus that. Okay, now after that becomes parallel lines and perpendicular lines. I don't think so I have to explain it very more. Okay, two lines which are never intersecting are the parallel lines, never intersect. Or you can say the difference between the distance between them is always constant, and the perpendicular line are the line which intersect at 90 degree. They intersect at 90 degree, so they are perpendicular. Incoming voice call from Dr. Navin Singh Agra on Singh. Okay, Incoming voice call from Dr. Navin Singh Agra on Singh. एक मिनट बेटा. रक्षा नमस्कार. हूँ तो सर क्लास में ही, बताइए सर. मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको ना. और कोर्स तो उसका पूरा कंप्लीट हो गया सर. कोर्स तो हो गया है, वही डेट अगर ले तो फिर हम उसको जो है मॉक वगैरह करवा के छुट्टी करें मैं उसकी. फिर ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तो मैं भी बात कर लेता हूँ. ओके ओके सर. यस बेटा. या सो ये हमारा हो गया. इसके बाद हमारे पे आता है राइट एंगल. आपको पता है सबटेंडेड एंगल्स, पॉलीगन्स. ओके, नाउ व्हाट आर राइट एंगल्स? राइट एंगल्स तो सिंपल सी बात है. आई आस्क्ड ए कोई बुक के एंगल, ऑल एंगल्स विच आर करेक्ट आर राइट एंगल. मतलब ऑल एंगल्स विच आर करेक्ट आर राइट एंगल. दैट मीन्स एक डेफिनेशन एक बच्चे की ने दी थी, बट इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन. So the measurement between two rays, because this is a ray we have, this is a angle we have. Okay, if this angle measurement is 90, that means they are perpendicular 90 degree. So this is a 90 degree angle, right angle. This is known as right angle. Okay, now what is an angle? We have a definition here. Subtended angle. What is a subtended angle? See, this is something like that. If you have a circle, yeah, that is a circle is. So any arc, this arc subtend an angle like this at the center. Okay, so this is known as angle AOB is a subtended angle. That is, it is the angle subtended by something, arc. This arc is subtending this angle. This arc ACB arc is subtending the angle at the center. Or you can have a line segment also, it subtend an angle to at some other point. Okay, for example, we have two lines, two parallel lines. This is a point. Here we have two different points are here. Okay, now these 2 points are subtending at an angle here. So this is also a subtended angle. That means it is an angle which is subtended by some a figure at a point. Okay. After that we have polygons, regular polygons, and polygon with the reflection and the rotational symmetricity. देखिए, अब polygons क्या है? Polygons सबसे पहले समझिए, polygons जो है वो एक 4 मिनिमम, एक ये क्लोज फिगर है.
क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 और मोर साइड, 3 और 3 से ज़्यादा साइड की क्लोज फिगर है बेटा, ठीक है ना। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि 3 और 3 से ज़्यादा साइड्स की ये क्लोज फिगर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद इसका क्या वो है, देखो मिनिमम 3 साइड की है। एक हमारे पे याद रखिए कि एक ट्राइंगल के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 साइड्स बराबर हैं, अगर ये साइड बराबर हैं तो इनके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, इनके साथ के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये केवल ट्राइंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, समझे ना। इसीलिए हम ट्राइंगल को कभी रेगुलर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। हम वहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ये साइड सब तीनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये और ये बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। हम इसको इक्वी एंगुलर नहीं बोलते, ये याद रखिए। एक इक्विलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड सेम हो, और इक्वी एंगुलर होता है जिसकी ऑल एंगल सेम हो, ऑल एंगल सेम। अब जब ये दोनों फिगर साथ साथ होती हैं तो इसको बोलते हैं रेगुलर। अब हमारे जो पॉलीगन आएंगे आपके पास, वो सारे पॉलीगन जो हैं हमारे पास रेगुलर पॉलीगन आएंगे, समझे ना। अब आप ये देखिए, ये पेंटागन है, समझे ना। ये 4-6 साइड का हेक्सागन है, फिर ऐसे ही 7 साइड्स का आपका सेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनागन है, डेकागन है, ये सब आपके गन है, समझे ना। ऐसे ही आपके 4 साइड का भी आता है, ये रोम्बस है। अगर ये रोम्बस को हम ये एक स्क्वायर मानेंगे तो क्या होता है कि इनमें चारों साइड बराबर है, ये सब साइड बराबर हैं आपस में, और ये सारे एंगल्स भी बराबर हैं इनके। तो ये इक्वी एंगुलर भी हैं और इक्विलेटरल भी हैं, वही फिगर आपकी आनी है। और ये सारे के सारे जो है रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर का मतलब हमारे पे सिंपल सा लॉजिक हो जाता है कि वो इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर दोनों है, ठीक है ना। ये इसमें सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ऐसा होता है, ये IGCSE में हम उसमें पढ़ते हैं, इसके छोटी उसमें, तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये 2 सिमेट्रिक लाइन होगी। अगर मैं यहाँ से कहूँगा तो ये भी एक सिमेट्री लाइन होगी, ये इनको डिवाइड करती है इक्वल साइड में, लेफ्ट और राइट में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो, अगर पेंटागन में कहूँ तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड देन ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब मैं बात करता हूँ आपकी हेक्सागन की, तो इसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 तो ये हो गई, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके सेंटर से जा रही है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ साइड ऑड है या इवन है। अगर वो इवन है तो उसके साइड भी जो होते हैं, साइड का जो सेंटर होता है वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री में आ जाता है। बट अगर वो ऐसे ना हो तो उसमें उनका सिर्फ एक हम वर्टेक्स से ही निकाल सकते हैं, वर्टेक्स से ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये यहाँ भी जा रही है, कहने को आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जा रही है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बात आती है रोटेशन की। रोटेशन आप इनको घुमा सकते हैं, किसी भी आप एंगल पे इनको जो है आप रोटेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। दैट इज़ योर वे कि आप इसको किस एंगल पे रोटेट करते हैं, दैट इज़ दी रोटेशन, ठीक है ना। वो इनका रोटेशन होता है, आप इनको 360 करेंगे, कितना करेंगे, वो एक रोटेशन है। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखिए, जब आप हेक्सागन को, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हेक्सागन को हम बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हेक्सागन की 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं इसकी, ठीक है ना। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 है। देखो
अब आप एक सिंपल सी बात समझिए कि मैं इनके नाम दे देता हूँ A B C D E F, ठीक है ना, मैंने इनके नाम दे दिए। अब देखिए ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैं अगर आपको देखता हूँ तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे जा रही है, पूरी जाएगी, दूर तक जाएगी, इधर से उधर तक जाएगी ये। मैं कहने चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ना, देखो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका सेंट्रल एंगल, तो ये एक 60 डिग्री का हो गया। अब आप देखिए इसको अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कर दें, ठीक है ना, मैं इसमें से एक फिगर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और इसको ना 60 डिग्री में रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। ये फिगर का थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं इसको ना 60 डिग्री पे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो ऊपर वाला था ये मैं ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल इसके साइड, इसके बिल्कुल सिमेट्रिक ला देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह की आ जाएगी जैसी वो सिमेट्रिक थी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक आई थिंक ये बिल्कुल रेगुलर फिगर नहीं बनी हुई है। अगर हम इसकी एक रेगुलर फिगर बनाते हैं तो आप ये देखिए ये एक रेगुलर फिगर है, तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं और कलर हम इसका दूसरा ले लेते हैं, अगर ये देखिए रोटेट ये है, अगर हम इसको, हाँ बिल्कुल रेगुलर हो रही है, मैं यहाँ पर A लिख लेता हूँ, यहाँ भी A लिख लेता हूँ और A को मैं रोटेट करता हूँ। मैं यहाँ से इसको 60 डिग्री रोटेट करूँगा ऐसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, उसी तरह की बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगी जैसे कि ये एक्चुअली में होती है। तो वही सिमेट्रिक फिगर चारों तरफ उसी तरह से बनती चली जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं रेगुलर, क्या नाम, रोटेशन। जो सिमेट्रिसिटी है वो 60 डिग्री है इसकी 60 डिग्री जो है वो रोटेशनल सिमेट्रिक है। हर 60 डिग्री पे ये उसी तरह का एक पोजीशन एक्वायर कर लेती है, समझे ना, जो पोजीशन होगी वो एक्वायर कर लेती है हर बार ये। तो जो इसकी जो सिमेट्रिक होती है रोटेशनल सिमेट्रिक, वो 360 डिग्री अपॉन n होती है, नंबर ऑफ साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं, आप पेंटागन लेंगे उसके हिसाब से भी वही होगा, तो नंबर ऑफ साइड जितनी भी उसमें होंगी उसके हिसाब से वो अपने आप को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेती है। क्लियर है? पॉलीगन्स की सिमेट्रिसिटी हमने कर ही ली है, ठीक है, ये आ गया। रोटेशनल सिमेट्रिसिटी हमने कर ली है, तो हमारी जो है रोटेशनल सिमेट्रिसिटी जितनी उसकी लाइन ऑफ है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो रोटेशनल है वो उसका जितना होगा वही उतने का ही हो जाएगा, जितनी उसकी साइड्स हैं उतना ही उसका रोटेशनल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंगल ऑट ए पॉइंट, एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर एंगल, अपोजिट एंगल एंड द वर्टेक्स। ओके, ये कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक सा है। M2 का जो आएगा, ये आपको एक लाइन है, जब दो लाइन मिलती हैं तो वो 4 एंगल्स डिवाइड करती हैं। इसमें A प्लस B जो है वो 180 होता है, इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और B एंड C भी आपका 180 होगा, ये भी आपके लीनियर पेयर हो गए। तो इसी से ये आ जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। A जो है वो C के बराबर होता है और B जो है वो D के बराबर होता है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जब भी होता है, कोई भी दो लाइंस होती हैं उनमें ज़रूर ये होंगे, ठीक है ना। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दे विल बी देयर। अब हमारे पे एडजेसेंट एंगल आते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन आर्म है, एक आर्म कॉमन है उनका। ऐसे दो एंगल वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ये A और ये B है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, A और B, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? ठीक है ना।
जब कभी फिगर होती है कोई, जैसे ये वाली फिगर है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम एडजेसेंट ले लेते हैं, जबकि देखो इनमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है, एक आर्म कॉमन है। तो फिगर में हम उसको जो है ना इस तरह से एडजेसेंट एंगल मान लेते हैं कि भाई ये फिगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल एडजेसेंट है, फिर ये एक छोड़ने के बाद ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इनको ऑल्टरनेट बोल देते हैं, एक छोड़ने के बाद ऑल्टरनेट कह देते हैं उसको। तो ऐसे हम एंगल फिर ये ऑल्टरनेट में आ जाते हैं। फिर अगर आपस में आगे पीछे हो, जैसे ये और ये एंगल आमने सामने हैं, ऐसे ऐसे आमने सामने हैं, जितना इसके इधर है इतने इसके इधर, दो एंगल इसके इधर है, दो एंगल उसके इधर है, इनको बोल देते हैं अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ दो एंगल इधर हैं, एक एंगल इधर बचा है, तो इसको हम अपोजिट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पे आ जाती हैं पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये आपके 100 पेजेस बेटा आपके पूरे हो गए, ठीक है ना। Okay. तो मैं इनको कन्वर्ट कर देता हूँ, पहले आपको 100 पेजेस को मैं कन्वर्ट करके आपको भेज देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे।